हेलो टू ऑल एंड वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म। मैं हूं अनामिका और हम फिर से जारी रखेंगे आपकी स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की ये सीरीज। So I hope you have been following me up on this platform and you know that what all we have covered and what all we are going to cover in this session and how it's going to be useful in your prelims as well as in mains examination, as we are discussing the MCQs also and mains ke question also at the same time. So if you want to complete your modern Indian history, then follow this session. It will be very helpful for you. Before I get started with the today's lesson, again I would say if you haven't subscribed on Academy Plus, then do it. Use the referral code RANK10 so that you get discount of 10%. And apart from that, you get extra benefit also, like handwritten notes, book PDF, and personalized mentorship also you get. Less than 50 days have left for your prelims examination, so you can use an Academy to prepare for your examination in a very strategic manner. An Academy helps you because you get you take one subscription and you get unlimited benefits with an Academy. You get 100% syllabus coverage, prelims and mains ki test series with evaluation and daily current affair practice, essay and answer writing practices, and interview preparation is also done by the top educators. So in a very strategic manner, you can prepare for your UPSC examination. Join the batch in which you are comfortable. हिंदी, इंग्लिश और बायलिंगुअल तीनों में ये अवेलेबल है. बाकी की डिटेल्स भी आप देख सकते हो. अगर आपको कोड रैंक 10 या कोड 10 यूज करोगे तो यू गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट, बट यू कैन यूज ऑल्सो यूपीएससी YT टू गेट 10% डिस्काउंट. If you're having any query regarding the subscription thing, type it in comment box. It will be answered. T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप अपने टेस्ट को एनालाइज कर सको, दैट वेयर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स एंड हाउ कम यू कैन टेक अप्रोच कि आप अपने मार्क्स को थोड़ा एनहांस कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा स्कोर कर सकते हो. You can click all these links to join us. So what all we have discussed reform movement, struggles and पिछले लेसन में हमने देखा था prelude of INC, Indian National Congress, क्या चीजें हो रही थी, जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल थे. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन और मॉडरेट फेज के बारे में. बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, सो प्लीज फॉलो दिस सीरीज. फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको इसी स्लाइड से बनेंगे, जो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ पिछले ईयर्स में आ भी चुके हैं, स्टेट एग्जाम में भी आ चुके हैं, SSC, बैंकिंग, आप जितने भी एग्जाम कहोगे सब में ये 4 क्वेश्चन आपको किसी ना किसी ईयर में देखने को मिल जाएंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस ईयर में हुई थी? 1885 में हुई थी. किसके द्वारा हुई थी? सो आइडिया वाज गिवन बाय द रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, इंग्लिश सिविल सर्वेंट, ही वाज नॉट एन इंडियन, एओ ह्यूम. तो किनके द्वारा हुई थी? एओ ह्यूम के द्वारा. पहला सेशन कहाँ पे हेल्ड हुआ था? बॉम्बे में हेल्ड हुआ था 1885 में, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में. दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन. एंड उसके बाद की कितने डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था? इट वॉज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इसकी पहली प्रेसिडेंटशिप किसने करी थी? Who was the first president of Indian National Congress? He was Womesh Chandra Banerjee, WC Banerjee. And one more question they can ask, जो इतना ज्यादा familiar नहीं है, but they can ask that who was the first women graduate of Calcutta University, or who was the first women graduate who addressed the Congress session? She was Kadambini Ganguly. So these 5-6 questions you can expect from this particular slide itself. ओके कौन कौन से थे आपके INC के लीडर्स, वो भी मैं आपको बताऊंगी. प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन थे, सारे बताऊंगी. उसके पहले एक सेफ्टी वॉल थ्योरी के बारे में आप जानिए कि ये थ्योरी कहती क्या थी. अब ये जो कॉन्सेप्ट था ना सेफ्टी वॉल थ्योरी का, ये किसके द्वारा लाया गया था? ब्रिटिशर्स के द्वारा ही लाया गया था. एओ ह्यूम ने इसकी जो है वो इसका आइडिया दिया था. सो पहला जो ब्रिटिशर्स को जब ये सिचुएशन पता लगनी शुरू हो गई थी, पॉलिटिकल सिचुएशन जो इंडिया में चल रहा था, कैसे पता लगी थी? 1857 की जब सिपोई म्यूटिनी हुई, सिपाही विद्रोह हुआ, तो इनको पता चल गया कि अब इनके जो ग्रीवेंसेस है ना वो बाहर आने शुरू हो गए हैं. भले ही उन्होंने उसको थोड़ा सा सप्रेस कर दिया था, लेकिन उनको ये बात पता चल गई थी कि इसमें काफी ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़ी है, और अब वो ऐसा नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ भी आगे चल के हो जैसा कि म्यूटिनी ऑफ 1857 में हुआ था. वो ऐसे किसी भी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते थे. सो उन्होंने ये चीज सोची कि क्यों ना इन इंडियंस को ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जाए कि ये जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी अपने डिमांड है, उस प्लेटफॉर्म पे जाके कहें कि भैया हमें ये चाहिए, और उसके बाद वो चीजें हमारे तक आए. ये डायरेक्टली हमारे सामने बस आके ना खड़े हो जाएं, डायरेक्टली हमारा जो है ये हमारे अगेंस्ट ये बोलने लग जाए, और उसके बाद हमें ये सिचुएशन जो है, ये क्रिटिकल सिचुएशन फेस
ना करनी पड़े। सो इसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन की जो है वो बात रखी। सो ही वॉज रिटायर्ड सिविल सर्वेंट नॉट बाय एनी इंडियन, ये इंडियन के द्वारा नहीं हुआ था, वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे एओ ह्यूम, और उन्होंने आईएनसी की स्थापना रखी। और उस समय कौन थे वाइसरॉय? वाइसरॉय थे आपके लॉर्ड डफरिन। अब आपको मैं बता दूं कि पहले कहा जाता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, और ये 1857 के म्यूटिनी के बाद 1858 का जो एक्ट आया उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय कह के जाना जाने लगा। सो उस समय जो वाइसरॉय थे वो डफरिन थे, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि हु वाज द वाइसरॉय। एंड उसके बाद इन्होंने सेफ्टी वॉल थ्योरी का इस्तेमाल करना शुरू किया अगेंस्ट द पॉपुलर डिसकंटेंट, कि इनके जितने भी डिसकंटेंट हैं वो डायरेक्टली हमारे सामने ना आए। एंड आफ्टर दैट अगर आप ये कहते हो कि एओ ह्यूम और जो ब्रिटिशर्स थे वो ये सोचते थे कि अगर कोई एजुकेटेड इंडियंस हैं और अगर वो ही पॉलिटिकल लीडर्स बन जाएं, इनको अपनी पब्लिक के डिमांड्स और उनके चीजों को सुनने के लिए, तो फिर हम मतलब इस तरीके की सिचुएशन से बच सकते हैं जो हमने 1857 के रिवॉल्ट में देखी। हमें हमारे खिलाफ डायरेक्ट रिबेलियन नहीं होगा, गवर्नमेंट के खिलाफ ये डायरेक्ट कोई ऑर्गेनाइज नहीं कर देंगे रिबेलियन। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने इनको एक प्लेटफॉर्म देने का सोचा जहां पे ये अपनी आवाज उठा सकते थे, वेयर दे कैन रेज देयर वॉइस एंड इट मे बी पॉसिबल कि वो किसी भी तरीके के नर्सेंस, कोई भी जो ऑब्स्टिकल है उसको रोक पाएंगे। और इसी के साथ उन्होंने आईएनसी की स्थापना की जो है वो सेफ्टी वॉल थ्योरी यही कहती थी कि ये कोई इंडियंस के हक में रखने के लिए नहीं बात की गई थी, ये बस बात की गई थी कि ये इनको ऑब्स्टिकल जो है वो फेस ना करने पड़े, कोई भी रिबेलियन इनको फेस ना करना पड़े। इसलिए अब पी दत्ता जो है वो ये कहते हैं कि आईएनसी वाज बोर्न आउट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी टू अबॉर्ट अ पॉपुलर अपराइजिंग इन इंडिया एंड, ये मतलब सही बात है, वो ये कह रहे हैं कि आईएनसी जो है ना वो इसलिए इसकी स्थापना हुई थी क्योंकि उनको पता था कि जो पॉपुलर अपराइजिंग जो इंडिया में हो रहे हैं वो उनको कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब करेंगे। विपिन चंद्र जो है वो भी यही कहते हैं कि अर्ली कांग्रेस लीडर्स जो हैं उन्होंने ह्यूम का यूज किया एज अ लाइटनिंग कंडक्टर ताकि वो जो नेशनलिस्टिक फोर्स है उसको साथ ला सके, और उसके बाद इन्होंने ये जो है सेफ्टी वॉल थ्योरी का इस्तेमाल इसके लिए किया था, ये विपिन चंद्रा का कहना है। सो डिफरेंट स्कॉलर्स डिफरेंट व्यूज। अब बात आती है कि आखिर एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे कांग्रेस के। बहुत सारे एम थे जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। द मेन एम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि इनिशियल स्टेट पे जब इसकी स्थापना हुई थी, पहला सेशन इनका हेल्ड हुआ ही था, उसके बाद इनका था कि एक डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है इनको बनाना है, फाउंडेशन इसकी रखनी है। दूसरी थी कि इनको पॉलिटिक्स और पॉलिटिकली एजुकेटेड पीपल का जो है दोनों का अच्छे ढंग से यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पॉलिटिकली जो है वो एजुकेट करना है। ऐसे की एजुकेशन अलग होती है, पॉलिटिकल एजुकेशन अलग होती है। सबसे पहले तो आपको लोगों में ये चीज बतानी है कि आखिर आपको पॉलिटिकली एक्टिव होना क्यों जरूरी है। आज के जमाने में भी लोग कहते हैं कि भाई आपका जो सबसे पहला जो फर्ज बनता है वो है आपका कि वोट देना, आपको वोट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि लीडर्स आप ही चुनते हो। और उसके बाद इनका ये था कि एक हेडक्वार्टर हमें जो है वो इस्टेब्लिश करना है किसी भी मूवमेंट के लिए करने के लिए। उसके बाद उन्होंने फ्रेंडली रिलेशन बनाने जो है अपने पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ शुरू किए ताकि वो नेशनल लेवल पे काम कर सकें। डिफरेंट रीजंस में आप कॉन्टैक्ट रखोगे तभी तो आप एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल पे लीड कर पाओगे, राइट। उसके बाद उन्होंने एक एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को डेवलप करने का सोचा, जो भी नेशन जो चाहता है उसको सामने रखने का सोचा। उन्होंने जो जितने भी डिमांड्स थे लोगों के उसको थोड़ा सा कंसर्न लेना उसका शुरू किया। उसके बाद उन्होंने उस व्यू को अपने रखते हुए, दिमाग में रखते हुए उन्होंने कॉमन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करने का सोचा जो कि लोगों के हित के लिए काम करे। फिर उन्होंने जो नेशनलिस्ट फीलिंग होती है, जो एक पैट्रियोटिक फीलिंग होती है, जो यूनिटी होती है, वो बढ़ाने के लिए, वो चीजें लोगों में जगाने के लिए कोशिश करनी शुरू करी, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन और एनीथिंग और प्रोविंसेस। चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो किसी भी प्रोविंस से बिलोंग करते हो, किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री से बिलोंग करते हो,
या फिर किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, वो यूनिटी लाना चाहते थे इंडियंस में, और इसीलिए चाहते थे कि वो यूनिटी आएगी तो उसके बाद नेशनलिज्म वाली जो फीलिंग है वो ऑटोमेटिकली इनकी डेवलप होगी। ऑब्वियसली वो जो उनकी जो कॉन्शियंस है वो तो डेवलप हो ही रही थी ना, कॉन्शियसनेस इनमें आ ही रही थी। जब मैंने पिछले लेसन में आपको डिस्कस किया कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल इवेंट भी हो रहे थे, चाहे वो अमेरिका रिवॉल्यूशन या फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, वहां से ये चीजें उनको पता चल रही थी, लेकिन उसको डेवलप कराना ज्यादा जरूरी था। उसके बाद वो चाहते थे कि प्रमोट करें और डिफाइन करें अपने इंडियन नेशनहुड को, इंडियन कल्चर को, ये भी इनका मेन एम था। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी बन सकता है, व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएनसी। सो ये क्वेश्चन आप एम्स में मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एग्जामिन रीजंस examines the reason that led to the foundation of Indian National Congress and its major objective. So 150 वर्ड्स में या 250 वर्ड्स में आपको इसको एनालाइज करने के लिए दिया जा सकता है। 150 वर्ड्स में दिया जाएगा क्योंकि जीएस पेपर फर्स्ट से ये रिलेटेड है। अब है आपका एरा ऑफ मॉडरेट्स। तो अगर आपको एरा ऑफ मॉडरेट्स माना जाए ना, तो वो है 1885 आईएनसी की स्थापना से लेके 1905 तक का पीरियड। 1905 को आप बंगाल के विभाजन तक से याद रख सकते हो, ऐसा ही है। तो अगर आपको आईएनसी के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनका नाम पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी हैं, फिरोज शाह मेहता, डी वॉचर, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, एस.एन. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुब्रमण्यम अय्यर, ये सारे बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स थे। अदर मॉडरेट लीडर्स की बात करो तो आर.सी. दत्ता थे, बिहारी घोष थे, एम.जी. रानाडे, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, आनंद चालू और एस. सुब्रमण्यम अय्यर, ये लोग थे मॉडरेट अदर लीडर्स। अब है कि मॉडरेट का अप्रोच क्या था, क्या अप्रोच लेके वो चलना चाहते थे, क्या उनका डिमांड किस तरीके से रहना रखते थे वो, ये चीज है। तो सबसे पहले तो दे वर्कड ऑन अ टू प्रोलॉन्ग मेथडोलॉजी, मतलब इन्होंने दो चीजें थी, दो रास्ते यूज करके, दो मेथड का यूज करके इन्होंने अपना काम करना शुरू किया। सबसे पहले तो ये स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन रखते थे कि उनको जितने भी पब्लिक है उनमें कॉन्शियसनेस वाली स्थिति लानी है, नेशनल स्पिरिट को डेवलप करना है, उनको पॉलिटिकली एजुकेट करना है और उसके बाद उनको पॉलिटिकली थोड़ा एक्टिव भी करना है, और वो क्वेश्चंस लाने हैं जो उनके दिमाग में चल रही हैं। दूसरा था कि जो भी है ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन जो है उसको हमें इस तरीके से करना है कि वो इंडिया के लिए एक रिफॉर्म के रूप में सामने आए, और उसके बाद नेशनलिस्ट का ये हमेशा से रहता था, उनकी कोशिश रहती थी कि जो रिफॉर्म लाए जाएं वो इंडियंस के हक में हो, उनके बेहतर हक में हो। ये सारी चीजें उनकी डिमांड्स रहती थी। सो बेसिकली अगर आप मॉडरेट्स के अप्रोच की बात करते हो ना, तो इनका जो ये था कि इनको लड़ाई झगड़ा करना नहीं था, ये बड़े ही शांत स्वभाव के रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि 3 P's आप कह सकते हो, उन्होंने 3 P का जो है वो मेथड यूज किया था। प्रेयर करते थे पहले, फिर पिटिशन डालते थे, और जब ये दोनों रिजेक्ट हो जाते थे तब जाके ये प्रोटेस्ट करते थे लास्ट में जाके कहीं, जिसकी कभी शायद कभी जरूरत पड़ती थी इनकी। सो इन्होंने यही चीजें जो है वो करनी शुरू करी। सबसे पहले वो क्या करते थे कि उनको ये रहता था कि पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से हमें अपनी डिमांड रखनी है, और अगर वो डिमांड लॉ के हिसाब से इस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अगर वो फुलफिल कर देते हैं तो क्या जरूरत है प्रोटेस्ट एंड ऑल की, जो कि वो लोग कभी करते नहीं थे। उसके बाद उन्होंने ये किया कि एक चीज गलती उन्होंने ये की कि सिर्फ एजुकेटेड क्लासेस को ही इन्होंने ज्यादा से ज्यादा लिया था, उन्होंने कॉमन मासेस जो आम जनता होती है उनको ज्यादा एम्प्लॉय नहीं किया था। अब एक रीजन बताती हूँ ऐसा इन्होंने इनका इनका क्या एक सोच थी इनकी। वो ये सोचते थे ना कि कोई भी कॉमन आदमी जो है जब तक उसको पॉलिटिक्स का आइडिया नहीं होगा तब तक वो पॉलिटिकली, जब तक वो एजुकेट नहीं होगा तब तक वो पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता है। तो इसीलिए ये कॉमन मासेस तक जाते ही नहीं थे। अब इनके लिए तो इम्पॉसिबल था ना कि किसी पर्टिकुलर आदमी को आप पहले पॉलिटिकली जो है वो एक्टिव कराओगे, उसको नॉलेज दोगे, उसके बाद उसको अपने ग्रुप में शामिल करोगे। तो इसीलिए ये ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाते थे। जो लोग एजुकेटेड थे, जो लोग बाहर से पढ़ के आए हैं, या फिर जो लोग थोड़ा पॉलिटिकली एक्टिव है, जिन्होंने लॉ की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री ले रखी है, बस उसी को ये शामिल करते थे क्योंकि उनको समझाना इनको आसान होता था। अब यही इनकी सबसे बड़ी गलती भी थी, ये आप कह सकते हो। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आता है कि प्रेयर और पिटीशन को ये करते थे, उसके बाद फेल हो जाने पे ये जितने भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन होते हैं, व्याकुलता अपनी जो है वो जाहिर करते थे। तो कितने हद तक सक्सेसफुल हो रहा था और क्या ये सक्सेसफुल हो भी रहा था, हम इसको डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले अगर आप कंट्रीब्यूशन की बात करते हो कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन मॉडरेट जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने दिया, क्या क्या इनके मतलब एक सक्सेस आप कह सकते हो कि क्या क्या इनको जो है वो सक्सेस मिली।
मेथड मैंने आपको बता दिया, ये पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में अपने डिमांड को रखने में ये बिलीव करते थे। पिटीशन, मीटिंग, रेजोल्यूशन, मेमोरेंडा साइन करके या फिर किसी भी तरीके से अपनी बातों को रख के ये चीजें करना चाहते थे। और उसके बाद इनको ना ब्रिटिशर्स पे काफी बिलीव था। वो ये जानते थे कि ब्रिटिशर्स का जो जस्टिस सिस्टम है वो काफी ज्यादा अच्छा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। इनके ये मिथ थे। उसके बाद इनका जो है हमेशा कभी भी आर्म एनोमिनेशन को वो बहुत लास्ट सोचते भी नहीं थे कि कभी इसका उपयोग भी करना है। वो पॉलिटिकल राइट्स और सेल्फ गवर्नमेंट जो था वो लेना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर में ही लेना चाहते थे। वो कभी ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स से वो हट के अपना कुछ यहाँ पे कर पाए। तो सक्सेस ऑफ मॉडरेट्स की बात करो जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया नेशनलिज्म में, सो इन्होंने बहुत सारी चीजों में किया। एक अगर ओवरव्यू दूं तो मैं तो इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1892 का आया था, ये इन्हीं का एक सक्सेस आप कह सकते हो। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो साइजेस इंक्रीज हुए, जो लोगों के नंबर्स इंक्रीज हुए इंडियंस के नॉन ऑफिशियल के लिए, वो भी इनका एक कह सकते हो कि इनकी डिमांड थी। एंड उसके बाद नेशनलिज्म का जो सीड है वो यहाँ पे बोने में इनका काफी ज्यादा जो है वो योगदान था। इन्होंने डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वालिटी वाली जो चीज है वो लोगों के मन में बहुत ज्यादा पॉपुलर करा था। गोपाल कृष्ण गोखले और रानाडे जैसे जो लोग थे उन्होंने सोशल रिफॉर्म भी करना शुरू किया। चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, विडो के लिए ये सब वो अलग से कर रहे थे। और उसके बाद जो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लाए जाने में, ये इनका एक मेन मुहिम में आप कह सकते हो। यहाँ पे अगर आप बात करते हो कि किस तरीके से जो इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म हो रहा था, तो ये चीज ये है कि द अर्ली नेशनलिस्ट जो थे, जो कि दादा भाई नौरोजी को बहुत ज्यादा इसमें माना जाता है, आरसी दत्ता और अदर्स जो थे, उन्होंने बहुत ज्यादा पॉलिटिकली इस चीज को एनालाइज किया, इकोनॉमिकली एनालाइज किया कि जो ब्रिटिशर्स है ना, वो तो सबसे पहले कॉटन और सिल्क इंडस्ट्री जो यहाँ का थी वहां उसको डिस्ट्रॉय करके, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो एक सप्लायर हुआ करता था, कभी इंडिया एक सप्लायर हुआ करता था रॉ मटेरियल का, और उसको अब इन्होंने क्या बना दिया था, एक सप्लायर से एक इंपोर्टर बना दिया था। तो इस तरीके से इनका ये कहना था कि ये मतलब इंडिया के हक के लिए ठीक नहीं है। वो इकोनॉमिकली जो है ना ड्रेन आउट कर रहे हैं हमारे कंट्री को, एक सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल से, और ये अब हमें क्या बना दे रहे हैं, इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्योंकि ये यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, वहां पे प्रोडक्ट बनाते थे और वहां से फिर यहीं पे इंडिया में उसको बेच देते थे, पूरा ये करके फिनिश्ड गुड के द्वारा। तो इस तरीके से मॉडरेट ने इसको समझा और उन्होंने समझा कि इंडिया की जो प्रॉपर्टी है और जो इकोनॉमिकली जो हम बैकवर्ड हैं, वो इनकी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी के कारण है। ये हमारा जो है ना खून चूस रहे हैं। ये चीज इनको समझ में आई, ये कंट्रीब्यूट किया इन्होंने और इसके खिलाफ बात करनी शुरू कर दी। They oppose the transformation of a basically self-sufficient Indian economy into a colonial economy. ऑफ कोर्स ये इनको चीज नहीं समझ में आ रही थी कि आखिर जो हम एक इंडियन इकोनॉमी एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी, हमारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी, हमारी सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन जब वहां पे ब्रिटेन में रिवॉल्यूशन आया, मतलब इनको थोड़ा सा अच्छा मतलब फायदा होने लगा, मशीनें इन्होंने डेवलप कर ली, तो ये क्या करने लगे, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाके वहां पे प्रोडक्ट को बना के और उसके बाद हमें ही सप्लाई करने लगे। तो जब इंडिया, और उससे क्या हुआ, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी, कॉटन इंडस्ट्री जो थी, वहां के लोग जो थे बहुत ज्यादा बेरोजगार हो गए, उनके पास तो कोई रोजगार रह नहीं गया। और उसके बाद फिर वो मतलब उनके पास कोई काम ही नहीं था, और फिर वो किधर शिफ्ट हो गए, खेती की तरफ। अब खेती की तरफ भी ज्यादा लोग शिफ्ट होंगे तो वहां भी जोर पड़ेगा। तो इस तरीके से चीजें जो है वो गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी। द अर्ली नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने बहुत सारी और चीजों में डिमांड रखी थी, और इसीलिए इनका आप कह सकते हो इन्होंने एक तरीके से कंट्रीब्यूट किया था नेशनलिज्म में। एक तो इन्होंने लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस करने के लिए कहा था, सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करने के लिए इन्होंने कहा था, इम्प्रूव करने के लिए कहा था जो भी प्लांटेशन लेबर थे और जो वर्किंग कंडीशन थी उनके, जैसे कि इंडिगो प्लांटर्स जो थे वो यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स के अंडर कंट्रोल में रहते थे। वो लोग उनको घर भी नहीं जाने देते थे, विदाउट उनके परमिशन वो लोग घर भी नहीं जा सकते थे। तो उनके खिलाफ इन्होंने बात करनी शुरू की। फिर मिलिट्री एक्सपेंडिचर ये काफी ज्यादा कर रहे थे, क्योंकि उनके ट्रूप्स जो थे, उनके लोग जो थे, उनको ये हाईएस्ट सैलरी देते थे, अपने सैनिकों को ये अच्छे से रहन सहन देते थे। तो उसमें क्या इंडिया का ही तो रिसोर्सेज जा रहा था ना, तो ये मिलिट्री पे भी काफी ज्यादा एक्सपेंड कर रहे थे।
और उसके बाद इन्होंने अपने मॉडर्न इंडस्ट्री को काफी ज्यादा एनकरेज करना शुरू कर दिया था। टैरिफ जो थे, लो टैरिफ से इन्होंने हाई टैरिफ करना शुरू कर दिया था इंडियन गुड्स के लिए। और उसके बाद इस तरीके से गवर्नमेंट को जो आ रहा था, जो भी इनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा था, वो भी बहुत ज्यादा कम होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया उस समय रूल कर रही थी हमारे यहाँ। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड प्रोपेगेंडा इन लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑफ कोर्स मतलब ये मैंने कहा कि जैसा कि काउंसिल को एक्सपैंड करने में इनकी काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन रही, और उसके बाद इसका रिजल्ट भी था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 था वो पास किया गया था। इन्होंने एक टाइम जब आया था 1892 का जब टाइम आया था, तो इन्होंने एक स्लोगन रख दिया था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर आप हमें रिप्रेजेंटेशन काउंसिल में नहीं दोगे तो हम टैक्स पे नहीं करेंगे। और इसी के बाद इन्होंने लाया था आपका जो इस तरीके काउंसिल एक्ट 1892 वाली चीज। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी इंडिया की ना पहले, उसके पास कोई ऑफिशियल पावर, रियल ऑफिशियल पावर, जो कहते हैं ना लेटर और स्पिरिट में सेम होना सिचुएशन, वो नहीं था। लेटर और स्पिरिट में डिफरेंसेस थे। कहने को यहाँ पे इनको ऑफिशियल पावर मिले हुए थे, लेकिन रियल ऑफिशियल पावर किसके पास था? अंग्रेजों के पास था। सो 1920s तक यही सिचुएशन चल रहा था। इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के दौरान के बाद बनाई गई थी, वो एक ऐसी बॉडी थी जिसमें ऑफिशियल मेजर्स जो थे वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के द्वारा पास होते थे, और इंडियन मेंबर्स उसमें काफी ज्यादा कम थे। और इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो भी इंडियन मेंबर्स उसमें थे भी, वो काफी ज्यादा वेल्दी थे, उनके पास ज्यादा जमीनें थी और लॉयलिस्ट इंटरेस्ट के थे। सो बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो रियली एक इंडिया के हक के लिए बात कर सकते थे। सो इन्होंने कहा काउंसिल को एक्सपैंड करो और ग्रेटर पार्टिसिपेशन दो इंडियन लोगों को। सो आपको पता होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के प्रोविजंस क्या क्या थे। नहीं पता तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पढ़िए, यहाँ पे भी एनालिसिस उसकी मैं कर चुकी हूँ, तो देख लीजिए, इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। मेन प्रोविजन अगर मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, तो जो इस समय एडिशनल नंबर्स थे इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उसके नंबर जो है वो एडिशनल नंबर ऐड किए गए थे उसमें। उसके बाद क्या हुआ था कि जो इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, यहाँ पे गवर्नर जनरल जो है 10 से मतलब 10 to 16 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है वो रख सकते थे। पहले 6 से 10 होते थे, अब इनको कहा गया 10 से 16 कुछ नॉन ऑफिशियल आप रख सकते हो। तो नॉन ऑफिशियल जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स बढ़ाए गए थे यहाँ पे, वो इनके हक के लिए एक चीज थी। उसके बाद इनको ये भी हक मिला था कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हो, आप क्वेश्चन जो है ना वो पूछ सकते हो। तो ये 2-3 चीजें इनके हक में की गई थी, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशन थे। ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत ज्यादा इन्होंने दे दिया था। और इस रिफॉर्म ये जो इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रिफॉर्म होके आई भी थी ना, उसके कुछ ज्यादा मतलब इनको बेनिफिट नहीं थे। सिर्फ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो ही थे ना, वही इंक्रीज किए गए थे यहाँ पे। और बजट को आप डिस्कस कर सकते हो लेकिन वोट नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या फायदा। और अमेंडमेंट, अब वोटिंग नहीं होगी तो अमेंडमेंट भी नहीं हो पाएगा। सो इस तरीके से मतलब एक कहता है ना, रियल मीन में इनको कोई भी चीज देते नहीं थे ये लोग, बस ऐसे ही बुद्धू बनाने के लिए कुछ भी मतलब चलो हाँ दे दिया, और उसी में ये लोग थोड़ा बहुत ये खुश भी हो जाते थे। सो लिमिटेशन भी थी इनकी मॉडरेट्स की, कि ये काफी ज्यादा मतलब जोर नहीं देते थे, पार्टिसिपेट भी करते थे, डिमांड भी करते थे, लेकिन काफी ज्यादा जोर नहीं देते थे। जो भी इनको मिलता था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस इसको कभी मांगनी नहीं थी। ये मतलब ब्रिटिश डोमिनियन में ही रहना चाहते थे। और इनको ये पता नहीं था कि भाई सिर्फ एजुकेटेड क्लासेस के होने से आपका काम नहीं चलेगा। लोकल लोगों को, मास ऑफ द पीपल को आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। और वेस्टर्न थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग के आइडिया को आप बहुत ज्यादा अगर लोगे, तो वो लोकल लोगों के थोड़ी समझ में आएगी कि आप क्या कहना चाह रहे हो या क्या नहीं कहना चाह रहे हो। सो काउंसिल में रिफॉर्म की बात करी इन्होंने। एंड आफ्टर दैट द अर्ली नेशनलिस्ट वर्क विद द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट। इसके लिए इन्होंने काम करना जो है वो शुरू किया था। इंडियन काउंसिल एक्ट मैंने डिस्क्राइब किया आपको। कैंपेन फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी इन्होंने लाने की बात करी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनको रिफॉर्म कराना था, जो कि इन्होंने किया। थोड़ा बहुत ही सही। इंडियनाइजेशन हुई गवर्नमेंट सर्विसेज की, इंडियंस की रिक्रूटमेंट मतलब वहां पे होनी शुरू हुई थी। ज्यादा से ज्यादा सिविल सर्वेंट्स को जो है वो हायर पोस्ट के लिए जो है इंडियंस को रिक्रूट करने के लिए हाँ किया गया था। और उसके बाद जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को यहाँ पे सेपरेट किया करने के लिए इन्होंने बात करी थी कि दोनों को जो है वो सेपरेट किया जाए।
फिर इन्होंने एक एक चीज ये भी करी थी कि जो भी बर्मा पे अटैक हो रहा था या अफगानिस्तान पे जो लिटन का जो पॉलिसी चल रही थी या फिर जो भी नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल के साथ चल रहा था, ये सब करने अटैक करना और ये सब में क्या है, इंडिया के रिसोर्सेज की काफी ज्यादा क्षति हो रही थी। तो ये सारी चीजें ये कहते थे कि भाई ये सब बंद करो, क्योंकि ये इंडिया का जो खजाना है ना, आप उन्हीं की चीजों से ये कर रहे हो, आप अपना तो कुछ यहाँ पे लगा नहीं रहे हो। तो और इंडियन ट्रूप्स भी आप ही हायर करके ले जा रहे हो, जान माल दोनों की हमारी नुकसान हो रही है। फिर उन्होंने वेलफेयर के लिए कहा, आपको करना ही है एक्सपेंड, तो आप वेलफेयर पे करो, सैनिटेशन अच्छा हो, हेल्थ अच्छा हो, लोगों को एजुकेट करो। इंडियन लोगों के एजुकेशन पे को एजुकेट करने के लिए इन्होंने बात करी थी कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दो, हमें फ्रीडम दो, हमें एसोसिएशन फॉर्म करने का। उसके बाद इंडियंस को एजुकेट करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करना शुरू करो, इंक्रीज करो अपनी स्पेंडिंग एजुकेशन पे। फिर उन्होंने इरिगेशन के लिए भी कहा कि कभी अकाल कभी सूखा, कभी ये दिल्ली दरबार के टाइम में ही साउथ इंडिया जो है वो अकाल में था, इस तरीके से इन्होंने बात करी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो भी यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हम बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं उसको थोड़ा कम करो आप। फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की बात आई कि एक जो कैंपेन ये लोग करते भी थे, तो जो नेशनलिस्ट थे वो मॉडर्न जो डेमोक्रेटिक आइडियाज होते हैं उसको इन्होंने लोगों तक पहुंचाना शुरू किया था। और उसके बाद जो है इन्होंने एक इंटीग्रल पार्ट इसको बना दिया था फ्रीडम स्ट्रगल का, कि आपको जब तक अपनी चीजें पता नहीं होंगी तब तक आप डिमांड करोगे भी कैसे, है ना। तो ये सारी चीजें ये लोग कर रहे थे। अब एन इवोल्यूशन ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, अगर आप बात करते हो कि अर्ली जो नेशनलिस्ट थे वो कैसे थे, क्या उनका था, मतलब किस तरीके से उन्होंने हेल्प करी, तो वाइड नेशनल अवेकनिंग ऑफ ऑल इंडियंस। सही बात है, उन्होंने काफी ज्यादा इंडियन मासेस को जो है अवेकन किया, उनको अपने हक के लिए जागना सिखाया, उनको पॉलिटिकली एक्टिव होना सिखाया, उन्होंने पॉलिटिकली उनको एजुकेट करना शुरू किया था। इस तरीके से उन्होंने लोगों को पॉलिटिकल वर्क में इन्वॉल्व करना भी शुरू किया। लेकिन ये किस पे बेस्ड होते थे, हार्ड रियलिटीज पे, कोई भी सेंटिमेंट कोई भी रिलीजन पे ये बेस्ड नहीं होते थे इनका आइडिया कि चलो आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओ क्योंकि आप मेरे कास्ट के हो या मेरे रिलीजन के हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर उसको इन्होंने पॉपुलराइज भी करना शुरू किया था, जो भी इनके मॉडर्न थिंकिंग और वेस्टर्न थॉट और आइडियाज थे उसको। उन्होंने बेसिकली जो है कॉलोनियल रूल का जो एक्सप्लोइटिव कैरेक्टर था, कि किस तरीके से वो इंडिया के रिसोर्सेस को, इंडिया के जो ट्रेजरी थी उसको खाली कर रहे थे, कैसे ये अपने ट्रूप्स और अपने ऑफिशियल्स को मेंटेन करने के लिए इंडिया के पैसे से उनको सैलरी भर रहे थे। तो ये सारी चीजें उनको पता चल चुकी थी अब। और जो ड्रेन थ्योरी आई थी, जो हमारे दादा भाई नौरोजी ने भी एक्सप्लेन किया था, जो प्री ब्रिटिश इसके एक्सप्लोइटेशन के बारे में, वो भी काफी ज्यादा कारगर सिद्ध हुई थी बाद में चल के। दे वर एबल टू एस्टैब्लिश द बेसिक पॉलिटिकल ट्रूथ एंड इंडिया शुड बी रूल्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन। हाँ, इनको ये बात पता चल चुकी थी। इंडियनाइजेशन ऑफ जब सर्विसेज इन्होंने करनी शुरू की, तो इन्होंने कहा कि भाई इंडिया है तो इंडिया के लोगों को आप ज्यादा रिक्रूट करो। हायर पोस्ट पे वो नहीं रिक्रूट करते थे, सूबेदार और इससे ज्यादा पोस्ट उनको हो ही नहीं सकती थी, तो सिविल सर्वेंट तो बहुत दूर की बात है। लेकिन बाद में चल के इन्होंने ये भी कहा कि हमें इंडियंस को भी रिक्रूट करो। और जब इन्होंने एज घटाई थी 21 से 19 की थी, तो उसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। और इन्होंने ये भी कहा था कि लंदन के साथ साथ इंडिया में भी ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने चाहिए। दे क्रिएटेड अ सॉलिड बेस फॉर द मोर विगरस मिलियंट, मतलब इस तरीके से उन्होंने नेशनल मूवमेंट बनाने में काफी ज्यादा अपना योगदान दिया, क्योंकि फिर ये बहुत ज्यादा अपना डेवलपमेंट करना शुरू कर चुके थे, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना शुरू कर चुके थे। लेकिन इनका वाइड स्कोप नहीं रहा। क्यों? बस एक ही रीजन है, रोल ऑफ मासेस, मतलब यहाँ पे लैकिंग था। एक नैरो सोशल बेस ये लेके चल रहे थे जिसका एक पैसिव रोल था। रीजन यही था कि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उनको पॉलिटिकल फेथ जो नहीं था मासेस में, वो ये बहुत सोचते थे कि पहले इनको पॉलिटिकली एजुकेट करो तभी जाके ये पॉलिटिक्स समझ सकते हैं। भाई आजकल के लोग तो एमएलए एमपी आपके डोंट माइंड बट 10th क्लास भी पास नहीं होते, इनफैक्ट अनएजुकेटेड होते हैं, तो हैं वो पॉलिटिक्स में हैं। सो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है थोड़ा सा एजुकेटेड होना। आई थिंक हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इतना एजुकेटेड तो होना जरूरी है कि वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकें। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि कम से कम आई थिंक कि इलेक्शन कमीशन को ये रिफॉर्म ले आना चाहिए कि कम से कम आप ग्रेजुएट तो हो, कम से कम आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझने लायक तो हो, तभी तो आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो। तो आई डोंट नो,
आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या ये सही है या फिर आपके हिसाब से क्या है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी व्यू क्या है इस पे। और रिजल्ट क्या था इसका कि मॉडरेट्स ने लोगों को जो है अपना अपने तरफ नहीं ज्यादा ला पाए, तो फिर ज्यादा ये पॉलिटिकली जो है वो अब सक्सेसफुल भी नहीं हो पाए। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट अगर बात करते हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या सोचती थी इनके लिए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना बस इनको ताने देती थी। कोई लोग ये कहते थे कि सेडिशियस ब्राह्मण्स हैं ये, कोई कहते थे कि ये डिसलॉयल बाबूज हैं, एटसेट्रा। ये सारी चीजें इनके लिए जो कमेंट किए जाते थे। डफरिन जो उस समय वायसरॉय थे, उन्होंने कांग्रेस के लिए ये कहा था कि ये एक सेडिशियस फैक्ट्री है जहाँ पे ये चीजें जो है ना बस की जाती हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट ने इसी को चलते बाद में जाके डिवाइड और रूल वाली पॉलिसी लानी शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि नेशन जो है वो यूनाइट हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, इसी तरीके से आएंगे। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ हेल्ड हुआ था, किसके द्वारा हेल्ड हुआ था, प्रेसिडेंटशिप किसने करी थी, आपको पता है। एओ बैनर्जी, जो एओ ह्यूम जो थे, उन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसका जो आइडिया है वो किया था, स्थापना की थी। प्रेसिडेंटशिप जो है वो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने की थी। जो पहला किसके वायसरॉय में हुआ था ये आईएनसी हेल्ड, आपको बताया मैंने, उस समय लॉर्ड डफरिन और एओ ह्यूम ने ही मिलकर इसका आइडिया करके आईएनसी की स्थापना रखी थी, और उसी साल फिर इसका पहला सेशन भी हेल्ड हुआ था। सो लॉर्ड डफरिन। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस किन के द्वारा फाउंड हुआ था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। हाँ, कितने सारे डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था, 72 थे, राइट। बॉम्बे में हेल्ड हुआ था 1885 में। मॉडरेट लीडरशिप कांग्रेस का टाइम पीरियड क्या था, तो स्थापना से लेकर 1905 तक, 1905 से 1918 तक का टाइम पीरियड या 15 तक का पीरियड जो है वो एक्सट्रीमिस्ट फेज माना जाता है। नरम दल, गरम दल। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज एसोसिएटेड विथ मॉडरेट लीडरशिप कांग्रेस, तो स्वदेशी। कैसे, तो स्वदेशी मूवमेंट हुआ कब था, 1905 में हुआ था, 1906 में हुआ था, कब हुआ था, बंगाल विभाजन के बाद हुआ था ना। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट हुआ। तो 1905 मतलब आप 1905 तक का पीरियड तो हम मॉडरेट फेज ही कर रहे हैं ना, तो स्वदेशी मूवमेंट ही होगा। होम रूल मूवमेंट बहुत बाद में हुआ 16 में जाके। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी आपका बहुत बाद में हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट तो 42 के पास हुआ। तो ये मतलब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एंड इस तरीके के ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ आपको आएगा नहीं। और बाकी तो इसकी प्रेसिडेंटशिप और फाउंडेशन और ये सारी चीजें बाद में और सारे क्वेश्चन में बताऊंगी, क्योंकि आईएनसी के सेशन को लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि ये सेशन किसने इसकी प्रेसिडेंटशिप करी थी और किस पर्टिकुलर सेशन में ये डिसीजन लिया गया था, कब वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, और ये सारे क्वेश्चन आते हैं जिससे मैं बहुत आसान। फिर ये भी पूछते हैं कि कब जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट है वो किस सेशन में अलग हो गए थे, कब उनका विभाजन हो गया था, स्प्लिट हो गए थे। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, डू नॉट वरी अबाउट दैट, क्वेश्चन कुछ भी छूटेगा नहीं। सो इफ यू लाइकिंग द लेसन देन टाइप इट इन कमेंट बॉक्स। और मैंने आपको पिछले लेसन में भी कहा था कि अगर आपके कुछ यहाँ पे इंटरेस्ट है, कुछ और कोर्सेस आप चाहते हो कि प्रीलिम्स के लिए या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं प्रेजेंट करके दूं, तो आप टाइप कीजिए उसको कमेंट बॉक्स में, जितने भी लोग मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हो। सो प्लीज टाइप इट इन कमेंट बॉक्स। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।